So, am I audible to everyone? Is the volume proper? Yes, ma'am. Yes, Okay. yes. So, without any further delay, I think we'll start with the topic itself, because as we dive into it, I will eventually tell you that why and how this anatomy and physiology is important. Like, some of you will obviously you can feel कि इतने जो 10th में या 12th में पढ़ा था last, वो इतने 20 या 30 सालों बाद फिर से पढ़ना, it is a bit difficult, but I will, from my end, I'll try my best to make it as simple and as easy for you as I can. So I think we'll start. I'll share a slide. Only host can share the slide. Ma'am, can you just make me the host? I have joined with two devices because I want to share my PPT also. So can you just make me the host so I can share my Yeah, PPT? ma'am. You're the co-host, ma'am. You're the co-host, ma'am. You can share. I have joined with another account. The same दो काम होंगे site का. तो उसको भी आप, can you just make that person the host as well? There are two sites. Yeah. हो रहा है क्या शेयर? I don't think so. नहीं. नहीं हो रहा है. अभी अभी हो रहा है ना? Yes, ma'am. I think I'm visible twice. Wait a second. I'll just. On the iPad, just swipe away your view. You can just swipe it away to the left. I can. So that your view on the iPad is not visible. Yeah, just swipe it. Yeah, thank you so much. I'm not like, you know how doctors are, not very good with devices. So. Okay, so we'll begin with the anatomy and physiology lectures. Today's lecture is just going to be an introduction and overview to what we'll be seeing for the rest of the year. I'll just communicate with you what you are going to expect this entire year and how the human body was actually built from a single cell, that how we have evolved into a completely fully functional being with such an high intellect. Like, if you look at the other species, like there are so many animals. Human is not the only animal. Man is not the only animal on Earth. Like there are millions and millions of species, and there are so many different kinds of living beings. But if we look at the margin that human beings have left behind the other species, it is huge. It is huge. The margin that we have left by evolving, like we say that hamare purvaj jo the, they were monkeys and they were apes and chimpanzees, but even when we compare ourselves to them, apart from the physical appearance and maybe some primitive responses or reflexes, हमें और उनमें कुछ ज्यादा मिलता जुलता नहीं है. सिर्फ शायद थोड़ा शरीर में भी four limbs, दो पैरों पे खड़े हो पाना, 5 उंगलियां होना हर हाथ पे, और थोड़ा बहुत हमारा सोचने का तरीका. इससे ज्यादा हमें और कुछ नहीं मिलता. Because that is how much the human body has evolved over time, that we have left such a big gap between the other species and us, and that is why human race is able to dominate the world. Like, हम तो इतने आगे बढ़ गए कि we get to decide कि इस दुनिया में किसने रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए. For example, हमने डिसाइड कर लिया कि स्ट्रीट डॉग्स अच्छे नहीं होते. हमने डिसाइड कर लिया कि ये एनिमल या ये वायरस या ये बैक्टीरिया, ये मच्छर या कुछ भी, एनी लिविंग थिंग इज नॉट फिट टू बी अलाइव और इज नॉट सपोज टू बी अलाइव. ये डिसीजन एक्चुअली भगवान का होता है. बट हम इतने इवॉल्व हो गए हैं कि हमें लगता है ये हमारा डिसीजन है. हम डिसाइड करते हैं कि ये स्ट्रीट डॉग्स जो है, इट्स अ वेरी बिग, दिस स्ट्रीट डॉग इशू इज अ वेरी बिग इशू. हम डिसाइड करते हैं कि ये स्ट्रीट डॉग्स में रहना चाहिए, स्ट्रीट डॉग्स में होना चाहिए, नहीं होना चाहिए.
कौन से एनिमल ने जिंदा रहना चाहिए, नहीं जिंदा रहना चाहिए, इस बैक्टीरिया ने, इस वायरस ने, इस इंसेक्ट ने, ये हमें मतलब सपोज फॉर एग्जांपल इतने सारे एनिमल्स अब तक एक्सटिंक्ट हो चुके हैं हमारी वजह से, बिकॉज ऑफ आवर हंटिंग, बिकॉज ऑफ द वे वी यूज एनिमल स्किन एंड अदर एनिमल पार्ट्स फॉर आवर रिक्रिएशन और नीड्स और रिक्वायरमेंट्स. तो ये सब डिसीजन हमारे हैं और हमें इतनी पावर आई कहाँ से है? व्हाई हैव वी बिकम सो सुपीरियर टू ऑल द अदर स्पीशीज ऑन अर्थ? तो उसकी जो स्टोरी है एंड हाउ एंड व्हाई दैट इज एंड इज इट ट्रू एंड इज इट हाउ इट्स सपोज्ड टू बी, ये हम शायद देखेंगे इस पूरे साल में थ्रू दिस एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी. सो इट्स नॉट जस्ट कि जो 10th या 12th में पढ़ा था क्या मतलब एक हार्ट होता है, 2 लंग्स होते हैं. इट्स नॉट जस्ट गोइंग टू बी दैट. एंड ऑफ कोर्स वी आर गोइंग टू इंटीग्रेट इट विद योगा कि मतलब भगवान ने हमें ये इतनी अच्छी बॉडी दी है, तो ये क्या सिर्फ खाने के लिए या टाइम पास मतलब जो भी पैसे कमाने के लिए या मजे करने के लिए दी है, या उसके आगे भी कोई पर्पस है? मतलब हमें अगर भगवान ने इतना सुपीरियर बनाया है बाकी स्पीशीज से, जो हमने अभी देखा, वी नो दैट वी आर वे अहेड ऑफ एनी अदर स्पीशीज. हम तो इतने डरते हैं कि कोई हमें ये कर देगा, क्या बोलते, दैट वी विल बिकम एक्सटेंट, कि हमें कोई स्वाइप आउट कर देगा इस धरती से, कि हम वो होने ही नहीं देते. हमें जैसे ही लगता है कि हमें कोई थ्रेट है, हम within a second our defenses are activated. For example, this COVID-19 pandemic, it was the first time in I think 100 or 200 years जब humanity को ऐसा लगा कि the human race is going to be swiped out because of this one virus which is not even visible to naked eye. हमें ऐसा लगा कि ये वायरस अब हमें नहीं रहने देगा, like we are going to be wiped out, the entire human race is going to be wiped out from the face of earth. ये हमें लगा. And तब हमने क्या किया? We used this brain of ours, this brain which is the most powerful weapon that humanity has against anyone in this world. वो हमने use किया. And what we did is that we found something. We found vaccines, we found ways to defend ourselves and we saved ourselves. तो ये जो हमारे पास दिमाग है, ये हमारा जो शरीर है, which can do so many wonderful things, to put it to the right use for ourselves and for the betterment of the entire humanity, is what we are going to learn through yoga. How to use this knowledge of anatomy and physiology and how to use your own body, the knowledge of your body, for your betterment and for the betterment of your loved ones. हम सबको कोई क्रांति नहीं करनी है, हर इंसान जाके कोई बड़ी चीज नहीं करने वाला, बट अगर आपका ये नॉलेज, आपका योगिक नॉलेज कंबाइंड विथ योर फिजिकल एंड बायोलॉजिकल नॉलेज, अगर ये आपके और आपके आसपास के 2-3 लोगों के भी काम आ गया, अगर इसने किसी एक की भी लाइफ सुधार दी, तो इट्स गोइंग टू बी वर्थ इट. सो आई थिंक we'll go ahead. So anatomy, the term anatomy, it derives from an ancient Greek which means to dissect. जो anatomy हम देखते हैं, जो human body में होती है, वो हमें कैसे दिखती है? It is in 2 parts. One is macroscopic and one is microscopic anatomy. Macroscopic वो होती है जो हमें naked eye से दिखती है, which is visible to the naked eye. For example, organs, muscles, bones. अभी बोन्स नहीं दिख रहा है बिकॉज वो बॉडी के अंदर है, बट अगर कभी किसी को भी फ्रैक्चर हो जाता है तो यू कैन सी इट. तो उसकी साइज इतनी होती है दैट यू कैन सी इट विथ योर नेकेड आई. यू डोंट नीड अ स्पेशल डिवाइस लाइक अ माइक्रोस्कोप और समथिंग टू विजुअलाइज इट. ओके. और फिजियोलॉजी क्या होती है? इट इज द साइंस ऑफ द मैकेनिकल, फिजिकल एंड बायोकेमिकल फंक्शंस ऑफ नॉर्मल ह्यूमंस और ह्यूमन टिश्यूज और ऑर्गन्स. मतलब अभी आपने स्केलेटन देखा होगा शायद मूवीज में या कहीं पर, तो वो स्केलेटन होता है, वो पूरी तरह अलाइन किया होता है, स्कल, सारे बोन्स, रिब्स, बट वो चल नहीं पाता क्योंकि वो जो फिजियोलॉजी होती है, जो हमारी बॉडी की फंक्शनिंग होती है, वो सिर्फ पार्ट्स के इंटैक्ट होने से नहीं होती. फॉर एग्जाम्पल, इफ there's someone who is in a coma, who is not responding through the brain, मतलब जिंदा है, लाइक ही इज इन अ, आप सबने मुन्ना भाई देखी होगी, सबको पता है आनंद भाई, तो कैसे उन्होंने कहा था कि ये वेजिटेटिव स्टेट में, हम उसे वेजिटेटिव स्टेट बोलते हैं, कि मतलब पेशेंट कुछ महसूस नहीं कर सकता. तो वैसे तो वो क्या फायदे का? हमारे पास सब कुछ है, पूरी बॉडी है, अंदर सारे ऑर्गन्स है, बट अगर हम उसे अच्छी तरह यूज नहीं कर पाएंगे, इफ वी कैन नॉट पुट इट टू अ फिजियोलॉजिकल यूज, देन only the anatomy is not going to benefit us. So इसीलिए फिजियोलॉजी भी पढ़ना इक्वली इम्पोर्टेंट है.
और ये जो फिजियोलॉजी है, इट अकर्स एट मेनी लेवल्स. इट अकर्स एट द लेवल ऑफ ऑर्गन सिस्टम्स, सेल्स एंड बायोमोलिक्यूल्स. तो जैसे हम कहते हैं, बचपन में पढ़ा होगा, माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ. तो ये सब वही है. फंडामेंटल यूनिट हम क्यों बोलते हैं? एक सेल, एक जो छोटा सा सेल होता है, इवन दैट इज अलाइव, एंड मिलियंस ऑफ सच सेल्स दे कम टुगेदर एंड मेक दिस ह्यूमन बॉडी. तो वो अलाइव रखने के लिए जो प्रोसेस होती है, उसे हम फिजियोलॉजी बोलते हैं. नाउ व्हाट इज होम्योस्टैसिस? तो होम्योस्टैसिस का बेसिकली मतलब होता है बैलेंस रखना बॉडी में. अभी हम है ना, वी आर वार्म ब्लडेड एनिमल्स. इसका मतलब क्या होता है? वार्म ब्लडेड, कोल्ड ब्लडेड. कोल्ड ब्लडेड मतलब ये नहीं कि खून ठंडा है या खून गर्म है. वार्म ब्लडेड मतलब आवर बॉडी is able to maintain its own constant temperature. हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर होता है 36 to 37 डिग्रीज का, वो हम मेंटेन कर सकते हैं डिस्पाइट ऑफ द टेम्परेचर दैट इज इन द एनवायरमेंट सराउंडिंग अस. इसका मतलब क्या है कि हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर है, अगर हम किसी बहुत ठंडी जगह जाएंगे तो देयर आर सम रिफ्लेक्सेस दैट अकर. वी स्टार्ट शिवरिंग, हमारे दांत थर थर कांपने लगते हैं, हम खुद थर थर कांपने लगते हैं. तो व्हाट इज दैट? दैट इज आवर बॉडीज मैकेनिज्म टू प्रोड्यूस हीट. क्योंकि बाहर का जो टेम्परेचर है वो कम है, तो बाहर के टेम्परेचर की वजह से हमारा टेम्परेचर कम नहीं हो जाना चाहिए. हमारे बॉडी का काम क्या है? उसका जो टेम्परेचर है, जिस टेम्परेचर के साथ हम पैदा हुए थे, उसे मेंटेन करना. In the same way, if it's very hot, अभी तो इतना हमने बहुत ही पेनफुल समर से हम सब गुजरे, and we all were sweating like crazy. हम सबको इतना पसीना आता था, हमें लगता था कि क्या है. No one likes to sweat, obviously. पसीना आते तो इतनी किचकिच होती है, but that is actually your body's way of cooling down the surface of the body. When you sweat is what? It is fluid, it is water. तो जब you sweat ना, it forms a layer on your the water layer on your body. और जब वो evaporate होता है ना, तो वो evaporation की वजह से आपको ठंडक महसूस होती है. And that is how the body maintains its relatively cold temperature as compared to the environment. तो ये shivering, sweating, ये सारी चीजें जो है, ये involuntary है, हम नहीं कंट्रोल कर सकते ना. We can't control कि अब मैंने डिसाइड करा नहीं, मुझे आज मैं कुछ भी हो जाए मैं शिवर नहीं करूंगी, या कुछ भी हो जाए मुझे पसीना पसंद नहीं तो मैं पसीना आने नहीं दूंगी. ये हमारे हाथ में होता तो फिर क्या चाहिए था, और फिर ना एसी की जरूरत पड़ती ना हीटर की. लेकिन वैसा नहीं है, क्योंकि हमारी बॉडी में ये जो चीजें है ये ऑटोमेटिक मोड पे है होम्योस्टैसिस मेंटेन करने के लिए. तो ये होम्योस्टैसिस होता क्या है? इट इज द मेंटेनेंस ऑफ द ओवरऑल स्टेबिलिटी ऑफ फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस ऑफ द बॉडी. क्योंकि क्या होता है ना, हमारे बॉडी में जो भी प्रोसेसेस चल रहे हैं, फॉर एग्जांपल डाइजेशन, रेस्पिरेशन, हमारा हार्ट बीट, ये सब ना एक ऑप्टिमम टेम्परेचर पे ही फंक्शन कर सकते हैं. हमारे ब्रेन का सर्कुलेशन, सब कुछ. अगर टेम्परेचर गड़बड़ हो गया ना, तो ये सारे फंक्शंस हैम्पर हो जाते हैं. एंड वो सब ना हो, इसीलिए हमारी बॉडी होम्योस्टैसिस मेंटेन करती है. और ये रेगुलेट कौन करता है, ये मॉनिटर कौन करता है? ऑब्वियसली हमारा ब्रेन और नर्वस सिस्टम. तो बेसिकली होम्योस्टैसिस क्या है? द एबिलिटी ऑफ अ सिस्टम और लिविंग ऑर्गेनिज्म टू एडजस्ट इट्स इंटरनल एनवायरनमेंट टू मेंटेन अ स्टेबल इक्विलिब्रियम. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वर्ड इक्विलिब्रियम, हमारे बॉडी में भी और हमारी लाइफ में भी. जैसे मैंने आपको हमारी बॉडी का एग्जांपल दिया कि हमारी बॉडी क्या करती है, शिवर करती है या स्वेट करती है टू मेंटेन इट्स इक्विलिब्रियम. तो ये जो वर्ड है ना, अगर इस वर्ड को हमने अपनी लाइफ में फिट कर लिया या उसको अप्लाई कर लिया ना, तो देयर इज नथिंग लाइक इट. क्योंकि हम, ये पहला लेसन है आज जो हम अपनी बॉडी से सीखेंगे, और वो क्या है? होम्योस्टैसिस मेंटेन करना. हमारी बॉडी जैसे बाहर की चीजों की वजह से खुद का टेम्परेचर या खुद का जो अंदर का फंक्शनिंग है वो बिगड़ने नहीं देती. इट टेक्स केयर ऑफ इट सेल्फ. इट मेक्स श्योर कि बाहर की चीजें मुझे अफेक्ट ना करे, कि बाहर अगर गर्मी है तो मेरी बॉडी का टेम्परेचर ना बढ़े, बाहर ठंड है तो मेरी बॉडी का टेम्परेचर कम ना हो. तो ये हमारी बॉडी करती है, और यही हमें हमारे माइंड को या हमारे कॉन्शियस को सिखाने में शायद कितने ही जन्म लग जाते हैं. That is what we mean and that is why we come into yoga. What is yoga? Yoga is harmony.
हार्मनी बिटवीन योर हैंड, हार्ट एंड हेड. बाहर जो हो रहा है, कुछ भी हो रहा हो, उसका इफेक्ट मुझ पे नहीं पड़ना चाहिए, मेरे दिल पे, मेरे इमोशंस पे और इवेंचुअली मेरे बॉडी पे. क्योंकि जो चीज आपको साइकोलॉजिकली अफेक्ट करेगी वो इवेंचुअली आपको फिजिकल इफेक्ट्स देगी 100%, जिसे हम बोलते हैं साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर. कि स्ट्रेस की वजह से आजकल तो इतना, मतलब लोग किसी भी चीज का स्ट्रेस है, मैं ऐसे नहीं बोली दैट लिविंग इज वेरी इजी, सबके अपने अपने स्ट्रगल्स है, बट उस चीज को जब हम हद से ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं और उसकी वजह से हम हमारी बाकी चीजें, हमारी जो लाइफ की बाकी चीजें हैं, हम कंपार्टमेंटलाइज नहीं कर पाते, हम इक्विलिब्रियम नहीं मेंटेन कर पाते. कुछ भी हो गया तो बाहर की चीजों की वजह से हमारा जो स्टेबिलिटी है, जो इक्विलिब्रियम है, वो इंस्टेंटली हिल जाता है. हमें ट्रिगर करना बहुत इजी है. इट्स वेरी इजी टू सेट अस ऑफ, टू ट्रिगर अस. हमारा खुद पे कंट्रोल ही नहीं है. इट्स लाइक हमारा टीवी है पर रिमोट हमारे हाथ में ही नहीं है, रिमोट बाहर वाले के हाथ में है. बाहर वाले ने, हम कभी कभी कितने डिपेंड होते हैं किसी चीज पे या किसी इंसान पे कि मुझे ये प्रमोशन मिला तो आई विल बी हैप्पी, मुझे अगर इतने मार्क्स मिले तो आई विल बी हैप्पी, इस इंसान ने मेरे लिए ये किया, या फिर इफ दिस पर्सन ब्रिंग्स मी फ्लावर्स, इफ दिस पर्सन बाइज मी दिस, या इफ माय चाइल्ड डज दिस, इफ माय हस्बैंड डज दिस, आई विल बी हैप्पी. इफ ही डजंट डू इट, आई विल बी एंग्री, आई विल बी सैड. व्हाई? तो ये हमारी जो बॉडी करती है ना, इक्विलिब्रियम मेंटेन करना, ये हमें अपनी बॉडी से सीखना है कि हम कैसे अपना जो इंटरनल इक्विलिब्रियम है, जो अपना कॉन्शियस इक्विलिब्रियम है, वो मेंटेन कर सकते हैं डिस्पाइट व्हाट इज हैपनिंग आउटसाइड. So this is the first lesson that we will learn today from our own body. Okay. Now let's jump into some theoretical facts because वो भी equally important है. तो हमने केमिस्ट्री में पढ़ा है, सबसे पहले एटम्स होते हैं, स्मॉलेस्ट यूनिट इन द एंटायर वर्ल्ड. नॉट ट्रू, वैसे उसके अंदर भी वो इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, बट वी वोंट गेट टू द डिटेल. तो एटम्स, दे कंबाइन ऑन अ मॉलिक्यूलर लेवल एंड उसके बाद सबसे पहला जो यूनिट बनता है, विच इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, राइट, वो है हमारा सेल. मतलब जो फंडामेंटल यूनिट मतलब क्या, व्हाट आवर बॉडी एज अ होल इज एबल टू डू, जिसमें क्या आता है, डाइजेशन, इनटेक ऑफ फूड, डाइजेशन, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन, ये सारी चीजें हमारी बॉडी करती है एज अ होल. यही सारी चीजें ये एक सेल अपने सेल्यूलर लेवल पे कर सकता है. दिस सेल, इट कैन डू ऑल ऑफ दीज थिंग्स. इट कैन टेक इन फूड, it can digest it, and it can excrete it out, and it can take in oxygen, and it can give out carbon dioxide. ये सारी चीजें एक छोटा सा सेल भी करता है, ऐसा सेल जिसे हम देख भी नहीं सकते, जिसे देखने के लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है. ये सेल भी ये सारी चीजें करता है जो हम करते हैं, और हम ये सारी चीजें इसीलिए कर पाते हैं बिकॉज हमारा एक छोटा सा सेल ये कर पाता है. ओके, विच इज वाई इट इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ. इट इज द फर्स्ट, it is the smallest, it is the most primitive living being that can carry out, that can do things that are required to sustain life. और ये सारे जो सेल्स होते हैं ना, ये बहुत सारे सेल्स मिला के बनता है एक टिश्यू. ओके, सो टिश्यू लेवल, और टिश्यूज मिलके बनाते हैं ऑर्गन. जैसे ये अब जहाँ पे जो दिख रहा है आपको, ये कार्डियक फिलामेंट्स है. This is the cardiac muscle. Okay, this is the cardiac muscle. ये जो टिश्यूज है ये मिलके बनाएंगे आपका ऑर्गन, एक ऑर्गन. जैसे ये हार्ट है, तो ये जो हार्ट है, दिस इज वन ऑर्गन. और अब हार्ट प्लस हमारे जो आर्टरीज है, प्लस हमारे वेन्स, हमारे कैपिलरीज, ये सारे मिलके बनाते हैं कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम. तो इसे हम क्या बोलते हैं, ऑर्गन सिस्टम. ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है, सेल, उसके बाद आता है टिश्यू जो बनाता है ऑर्गन. ऑर्गन साथ आके बनाते हैं एक सिस्टम, और एक
नहीं, ऐसे बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम्स, जैसे हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, इसीलिए हम उसे सिस्टम बोलते हैं, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम। सिस्टम मतलब क्या? सिस्टमैटिक काम चल रहा है। मतलब क्या होता है कि ये जो टिश्यू है ना, ये जो टिश्यू है ना, यहाँ जो सेल्स बनते हैं, जो भी सेल्स ये टिश्यू बनाते हैं, उन सारे सेल्स का एक काम होता है, राइट? मतलब ऐसा नहीं होगा कि लिवर का जो सेल है सपोज एक, वो रेस्पिरेटरी सिस्टम में है, नहीं, लिवर का सेल कहा जाएगा डाइजेस्टिव सिस्टम में, क्योंकि लिवर के सेल का काम क्या है? बाइल प्रोडक्शन, डाइजेशन, राइट? तो लिवर का सेल जाएगा लिवर टिश्यू में, वो बनाएगा लिवर और वो बनाएगा डाइजेस्टिव सिस्टम। वैसे ही लंग पैरेन्काइमा का जो सेल है वो बनाएगा लंग, और लंग with the help of your trachea, your bronchi, your alveoli will make the respiratory system. तो ये सेल्स कोई हैफिजार्ड मैनर में एक दूसरे के साथ नहीं मिल रहे कि अरे ये अच्छा लग गया तो इसके साथ चले गए. There is a system which it is following. The cells they come together like-minded cells, the cells that have similar function, जिनका मोटिव एक है, वो टाइप के सेल्स साथ में आते हैं. जैसे हमारी लाइफ में हम अगर हमारा किसी के साथ पॉइंट ऑफ व्यू या हमारे प्रिंसिपल्स या हमारा लाइफ का एम अगर किसी के साथ मिलता नहीं है, तो इट इज बेटर टू नॉट एसोसिएट विद देम मच, क्योंकि अदरवाइज क्या होने वाला है? अनॉमली. जब दो अलग अलग टाइप के सेल्स साथ आते हैं जिनका एक दूसरे से कोई ताल्लुक नहीं है, they are not related, they are not going to benefit each other, they are not going to help each other grow, they are not meant for a bigger purpose, तो it's going to lead to an anomaly कि जरूरत नहीं है इस चीज की, भले शायद उसकी वजह से आपको कोई नुकसान ना हो, but we are humans. हमारा काम सिर्फ दुनिया में आके या खाना खा के सो के बस ये सब करके जाना नहीं है. We have a greater purpose ना, तो उसके लिए it is very important that we choose the right kind of company for ourselves. So this is the second lesson that we learn from our body, that we need to align with the things that align with us and with our purpose. एक ही life है, we cannot waste our time, right? So that is how the cells, they become a tissue. Similar functioning tissues become an organ, and organs form the system, and system forms the whole body. And here you can see that the different systems are given. For example, this is the skeletal system, muscular, nervous, endocrine. हम इसको एक एक करके देखेंगे, अभी एक ओवरव्यू लेंगे, and फिर पूरा साल हमें एक एक करके यही सारे systems पढ़ने हैं. Lymphatic, respiratory, digestive, urinary, and reproductive. Okay? तो ये सारे systems बन गए. We have come from a cell, we have become a tissue, we have become an organ, we have become an organ system, and now we are a whole body. And now we'll be looking into the body. So these are all the systems that we are going to cover, and we are going to have a look, just a general look at what these systems are. Okay. The first one is the integumentary system. ये आपको इतने डिटेल में मैं नहीं पढ़ाने वाली. This is just, you are seeing this here and you will only be seeing this here, because इसका कोई ऐसे individual, obviously it is important, but ये आपके लेवल पे नहीं आता. It's more of a specialty like dermatology. So इसके जो skin major organs कौन से हैं? The integumentary system के skin, hair, sweat glands, nails. तो इन सब में क्या कॉमन लगता है आपको? What do you think is the function of these organs? ये बेसिकली हमें एनवायरमेंटल हजार्ड से प्रोटेक्ट करते हैं. हमारी जो बाहर जो चीजें हो रही है उससे हमारा इंटरनल एनवायरमेंट अफेक्ट ना हो. It makes sure that that happens. Okay? Helps regulate the body temperature, जो मैंने आपको बताया, warm blooded, cold blooded. So if you want to know warm blooded, cold blooded क्या होता है? Warm blooded is what us, animals like us, mammals, and I'm not very sure about the other things. I had learned it way back, but I don't remember now. But basically us, we are warm blooded animals, that our internal milieu, we call it milieu, the environment, it doesn't change with the changes in the environment. Whereas there are some cold blooded animals, I guess some fishes or something, उनका टेम्परेचर ना बाहर के एनवायरमेंट के हिसाब से बदल जाता है. And these kind of animals, the cold-blooded animals, they are like very primitive, way behind in the evolution chart.
So are we way behind in the evolution chart? No, we are not. But if we are not, then we have to be ahead, not only physically but also mentally, which is why it is important for us to maintain that balance, not only physically but also mentally. Physically तो हमारी body ख्याल रख लेती है, but mentally तो हमें ही करना है. We have to channel ourselves, we have to work on ourselves to achieve that equilibrium in life. तो जो हमारी बॉडी करती है इक्विलिब्रियम, उसमें स्किन का, हेयर का, स्वेट ग्लैंड्स का और नेल्स का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है. स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी. वेरी फनी बट इट इज ट्रू. सबसे बड़ा ऑर्गन अगर कोई है हमारी बॉडी में तो वो स्किन है. पूरी बॉडी को कवर करती है, उससे बड़ा कोई ऑर्गन. ओके. और ऑब्वियसली प्रोवाइड सेंसरी इंफॉर्मेशन जो हम नर्वस सिस्टम में सीखेंगे, बिकॉज दिस स्किन इट इज इनोवेटेड. इनोवेटेड मतलब उसमें नर्व्स अंदर जाती है, बाहर आती है, तो वहां से हमें सिग्नल मिलता है, सेंसरी सिग्नल. ये आ गया हमारा नर्वस सिस्टम. इसके पार्ट्स क्या है? ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, दिस इज द स्पाइनल कॉर्ड, पेरिफेरल नर्व्स, जो ये सब निकल रही है नर्व्स ऐसे, जो हमारी उंगली तक जाती है. लाइक हमारी उंगली तक को सेंसेशन है. इफ समवन टचेस अस हियर, वी नो. एंड हाउ डू वी नो? The signal comes from here and from the spinal cord, from your spinal cord and from your brain. So, and fraction of a second, कैसे अपने यहाँ टच किया, अभी पता चल जाता है ना, 5 या 10 सेकंड बाद. डिलेड फंक्शनिंग तो नहीं है, फटाक से समझ जाता है कि अभी टच किया, अभी समझ. डिलेड नहीं होता कुछ भी. कितना फास्ट कंडक्शन है हमारी नर्वस सिस्टम का. इमीडिएट रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, इमीडिएटली रिस्पॉन्स देता है वो. और क्या इसका काम होता है? कोऑर्डिनेट्स एंड मॉडरेट्स एक्टिविटीज फॉर अदर ऑर्गन सिस्टम्स. जैसे मैंने आपको बताया, ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम, इट इज द वन दैट मेंटेन्स इक्विलिब्रियम. जैसे हमें पता है, बच्चे अभी कैसे भी खाना खाते हैं, बट जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हमारा ब्रेन जैसे जैसे डेवलप होता है, वी नो कि हमें कैसे खाना खाना है. हमें हाथ में ऐसे उठाना है, हमें उसे मुंह में डालना है, नाक में नहीं डालना, कान में नहीं डालना है ना. कौन से हाथ से उठाना है, ऐसे उंगली से उठाना है, ऐसे नहीं उठाना है. तो ये सारी जो चीजें हैं, दीज मोटर रिस्पॉन्सेज, दीज मोटर फंक्शंस, दे आर कोऑर्डिनेटेड बाय द नर्वस सिस्टम. हमें इसे मुंह में डालना है, उसे चबाना है. ये सारी जो चीजें हैं, दीज आर ऑल मोटर एक्शंस. दीज आर एक्शंस दैट आर completed by different organ systems of your body. पर इसे कोऑर्डिनेट कौन करता है? आपने ऑर्केस्ट्रा देखा है? वो एक इंसान होता है, वो ऐसे ऐसे कर रहा होता है. हमें लगता है कितना स्टूपिड है, ये क्या कर रहा है, बजा तो बाकी सब रहे हैं ना इंस्ट्रूमेंट्स, बट एक्चुअली वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है. क्योंकि अगर वो उन्हें डायरेक्शंस नहीं देगा तो वो कुछ भी बजाएंगे. दे विल डू एनीथिंग, दे विल गो हेवायर, राइट. हमें जो कॉन्शियस कंट्रोल होता है, अभी बच्चे तो कैसे कहीं पे भी सुसु पोटी कर देते हैं, बट एज वी ग्रो अप वी रियलाइज कि देयर इज अ पर्टिकुलर टाइम एंड अ प्लेस वेयर वी आर सपोज्ड टू डू द जॉब ऑफ एक्सक्रीशन. और जब आपने मूवीज में वगैरह देखा होगा कि सम पीपल हु लाइक become intellectually disabled or who go into psychosis, they start doing all kinds of these stuff. They're very ill mannered, they urinate in the public, they are very don't treat people well, they don't eat on time, they don't eat at all sometimes, or they eat a lot, they cut themselves, they self harm. ये सारी चीजें जो करते हैं लोग, ये क्यों करते हैं? when there is some disturbance in the nervous system, जब आपका नर्वस सिस्टम आपकी बॉडी के फंक्शंस और एक्शंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहा, कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहा, तब ये सारी प्रॉब्लम होती है, राइट. थर्ड फंक्शन क्या है? इट प्रोवाइड्स एंड इंटरप्रेट्स सेंसरी इंफॉर्मेशन अबाउट एक्सटर्नल कंडीशंस. अभी हमें जब पत्थर लगता है तब हमें पता है कि पत्थर लगा है, कुछ जोर से लगा है, तो वी नो दैट इट वाज समथिंग हार्ड, इट वाज पेनफुल. अगर हम जमीन पे गिरे तो हमें पता है हम जमीन पे गिरे हैं, इट वाज पेनफुल. बट अगर हम बेड पे ऐसे गिरे तो हमें नहीं लगेगा, बिकॉज वी नो इट इज सॉफ्ट. तो वो सेंसरी इंफॉर्मेशन जो है वो हमें कहाँ से मिलती है? तो वो भी हमें नर्वस सिस्टम देता है. वी कैन डिफरेंशिएट बिटवीन द टच ऑफ डिफरेंट थिंग्स. अगर मैंने आपको एक लीफ से टच किया और मैंने आपको अपनी फिंगर से टच किया, तो यू विल नो द डिफरेंस. अगर मैंने आपको पेंसिल से पोक किया और मैंने आपको उंगली से पोक किया, यू विल नो द डिफरेंस. सो ये जो सारी चीजें हैं, दीज आर वेरी इंट्रिकेट एंड फाइन डिफरेंसेस. मोस्ट स्पीसीज में ये सब नहीं होता. आपको लगता है ह्यूमंस के अलावा और कोई बता सकता है कि
किसने, किस चीज ने मुझे टच किया, ये डिफरेंशिएट ह्यूमंस के अलावा कोई कर सकता होगा? आई डोंट थिंक सो। तो ये जो है इंटरप्रेटिंग द सेंसरी इंफॉर्मेशन अबाउट द एक्सटर्नल कंडीशंस, ये भी नर्वस सिस्टम करता है। बाहर ठंड है तो मैंने जैकेट पहन लेनी चाहिए, बाहर गर्मी है तो मैंने थोड़े लूज कपड़े पहन या फिर मैंने एसी लगा देना चाहिए। ये सारी चीजें हमें कैसे समझती है? बच्चों को तो नहीं समझती, या एनिमल्स को भी नहीं समझती। जैसे हमारा ब्रेन डेवलप होता है वैसे ये सारी हमें अक्ल आती है कि बाहर जो हो रहा है उसका हमें रियलाइजेशन होता है। अभी बच्चा पहली बार जब आयन को छूता है, उसे पता होता है कि ये, उसे नहीं पता होता है कि ये आयन गर्म होती है, इसे नहीं छूना चाहिए। स्त्री, गर्म स्त्री को, तो मतलब हर बच्चे के साथ हुआ ही होगा ये। जब तक वो खुद चटका नहीं लेगा अपनी उंगली को, तब तक उसे कभी नहीं समझने वाला कि इसे हाथ नहीं लगाना चाहिए। बट एक बार व्हेन ही टचेस इट, ही रिमेम्बर्स। हमारी बॉडी क्या करती है? हमारी बॉडी वही गलती फिर से नहीं करती है, क्योंकि वो याद रखती है। एक बार हम अगर गिर गए, हमें अगर पता है कि ये रास्ते पे जाते वक्त इधर खड्डा है, तो हम एक बार गिरेंगे ना, दूसरी बार तो हम साइड से चले जाएंगे क्योंकि हमें पता है वहां खड्डा है। तो ये हमारी बॉडी करती है फिजिकली। इट मेक्स श्योर दैट इट डजंट रिपीट द सेम मिस्टेक ट्वाइस। तो पर क्या है, हम करते हैं। So this is the third lesson that we learn from our body, कि just the way body remembers what is good for it and what is not good for it. In the same way, we also have to remember. हमें एक बार अगर एक्सपीरियंस आ गया किसी चीज का कि ये अच्छा है मेरे लिए, ये अच्छा नहीं है मेरे लिए, we should not repeat the same mistake twice. Should not. क्योंकि उससे हमें ही तकलीफ होने वाली है, किसी और को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। बट एक बार इफ वी रियलाइज ना, यू शुड बी स्मार्ट. मराठीमध्ये ती म्हणे ना, पुढच्याच ठेस मागचा शहाणा. तो हम इतने तो शहाणे होते नहीं है कि सामने वाले की गलती देख के हम सीख जाए, बट एटलीस्ट खुद की गलती से तो हम सीख ही सकते हैं। दूसरों की गलती से सीखने वाला इंसान तो महान होता है। मैं तो नहीं, मैंने बहुत गलतियां की है, बट एटलीस्ट वो गलती एक बार करो। एक बार आप करो तो वो गलती होती है, बार बार करो तो वो गुनाह बन जाता है, खुद के लिए भी। तो यू शुड नेवर डू दैट. ओके, सो ये हो गया हमारा नर्वस सिस्टम. नाउ द स्केलेटल सिस्टम, बोन्स, कार्टिलेजेस, लिगामेंट्स, बोन मैरो. ठीक है, कार्टिलेज क्या होता है, बोन क्या होता है, विल सी इन डिटेल व्हेन आई विल टीच यू द स्केलेटल सिस्टम. लिगामेंट्स क्या होते हैं, इट्स जॉइंट्स बोन टू बोन. मैं सुना है ना, लिगामेंट टेयर हो गया, तो अब से आप भी थोड़ा बहुत अभी ऐसे फ्लेक्स कर सकते हो कि लिगामेंट टेयर हो गया मतलब क्या होता है, आपको पता है, यू नो इट नाउ. एज अपोज टू इट, टेंडन क्या होता है फिर? मैम अगर ये बोन टू बोन इज लिगामेंट, तो टेंडन क्या बोलते हैं? टेंडन इज मसल टू बोन. ठीक है, तो जो बोन टू बोन अटैचमेंट होता है, कैसे होता है? एक दूसरे ऊपर बस रखे तो नहीं होते, वो फिसल जाएंगे, है ना? तो वो जो टिश्यू उसे अटैच करता है एक दूसरे से, उसे हम कहते हैं लिगामेंट. और ये जो मसल्स हमारे होते हैं, हमारे बोन के ऊपर मसल्स होते हैं, वो कैसे चिपके हैं? वो क्या ग्लू से चिपके हैं? नहीं. और वो पूरी तरह नहीं चिपके. फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो मेरा कोई मसल है, वो मेरी बोन को पूरी तरह नहीं चिपका हुआ है. इट इज जस्ट इंसर्टेड एट अ पॉइंट. क्योंकि अगर वो पूरी तरह चिपक जाएगा तो मेरा बोन मतलब हिलेगा कैसे? हाउ विल आई परफॉर्म दीज एक्शंस? हाउ विल माय मसल्स आर सपोज्ड टू बी फ्लेक्सिबल. हम ये जो फ्लेक्सिबिलिटी योगा के आसन में बढ़ाते हैं, हम क्या करते हैं? हम मसल की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाते हैं. तो अगर हमें उसे फ्लेक्सिबल रखना है तो उसे हम हर जगह अटैच नहीं कर सकते. फोर्थ लेसन ऑफ लाइफ, अगर आपको आगे बढ़ना है लाइफ में तो आप हर जगह अटैच नहीं हो सकते. यू हैव टू बी फ्लेक्सिबल. इफ यू वांट टू गेट द मैक्सिमम वर्क डन, यू हैव टू बी फ्लेक्सिबल, एंड फॉर दैट यू शुड नॉट गेट अटैच्ड एनीवेयर एंड एवरीवेयर. ओके, तो ये फंक्शंस क्या है इसके? प्रोवाइड सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन फॉर अदर टिश्यूज, राइट? हमारा जो रिब केज है, इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू द लंग्स, टू द हार्ट. बोन में कैल्शियम स्टोर होता है, मिनरल स्टोर होते हैं. इसी वजह से जो जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, आवर कैल्शियम लेवल्स, आवर मिनरल लेवल्स, हम मल्टीविटामिन्स लेते हैं. क्यों? बिकॉज दीज कैल्शियम एंड दी मिनरल्स, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोन हेल्थ. और फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स ये कौन करता है? बोन मैरो. ये हमने मूवी में देखा होगा, इसे बोन मैरो ट्रांसप्लांट की जरूरत है. तो वो मैरो ट्रांसप्लांट क्यों करते हैं? क्योंकि बोन के अंदर जो बोन मैरो होता है ना, इट इज एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर जनरेटिंग न्यू सेल्स. हमारी बॉडी में सेल्स
if you like look at your body today and if you look at your body for 7 months now, in 7 months time you're going to have I think it's 7 months or 7 years, I'm very confused, one of them, but basically at any point of time you don't have the same body that you did even a minute ago, because every minute your body is producing new cells and it is killing new cells, it is killing the old cells. Okay, so इसको हम टर्नओवर बोलते हैं कि हर किसी भी पॉइंट में इन योर बॉडी देयर इज कैटाबॉलिज्म हैपनिंग एंड देयर इज एनाबॉलिज्म. एनाबॉलिज्म इज प्रोडक्शन एंड कैटाबॉलिज्म इज डिस्ट्रक्शन. तो ये दोनों साइमल्टेनियसली हो रहा है और इसका बैलेंस जो है ना ये हमें जिंदा रखता है, राइट? मतलब अगर एक्सेस प्रोडक्शन हो गया, जो किसमें होता है, ट्यूमर में होता है. अगर कोई चीज ज्यादा बढ़ने लग गई तो ट्यूमर, वो भी खतरनाक है. अगर चीज कोई एकदम ही कम होने लग गई, जैसे कि फ्रैक्चर के बाद अगर बोन डेड हो गया या फिर गैंग्रीन हो गया, पैर का स्किन या टिश्यू डेड हो गया, मतलब क्या, मर गया, रिप्लेस नहीं हो पा रहा है, तो वो भी डेंजरस है. तो इसमें बैलेंस रखना इंपॉर्टेंट है और ये हमारा बोन मैरो करता है. प्रोडक्शन होता है बोन मैरो में और डिस्ट्रक्शन होता है स्प्लीन, लिवर, वो हम आगे जाके देखेंगे. ओके, फिर आता है एंडोक्राइन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिस्टम. लाइक नर्वस सिस्टम के बाद अगर कोई है जो हमें कंट्रोल करता है, नर्वस सिस्टम हमें ग्रॉसली कंट्रोल करता है, बट जो वेरिएशंस हमारे डे टू डे मूड में आते हैं या हमारे डे टू डे अप्रोच ऑफ लाइफ में आते हैं ना, तो दैट इज बिकॉज ऑफ द एंडोक्राइन सिस्टम. मेजर ऑर्गन्स कौन से हैं? पिट्यूटरी, जिससे हम बोलते हैं मास्टर ग्लैंड, क्योंकि ये पिट्यूटरी होता है जो इन बाकी सारे ऑर्गन्स को सिग्नल देता है. Sorry, organs नहीं, glands. Never make the mistake. Endocrine system में you never call it an organ. You always call it a gland. Okay. All the structures in the endocrine system are glands because they secrete hormones. Okay. Thyroid gland, pancreas. Pancreas आप कहोगे pancreas तो मैम digestive system में आता है, तो it is a heterocrine gland. ठीक है, मतलब ये एक्सोक्राइन भी है और एंडोक्राइन भी. ये सब मैं आपको फिर से बताऊंगी डाइजेस्टिव में, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू राइट नाउ. एक्सोक्राइन मतलब क्या है? एक्सोक्राइन पार्ट का फंक्शन क्या होता है? डाइजेस्टिव एंजाइम्स. डाइजेस्टिव एंजाइम्स. और एंडोक्राइन का फंक्शन होता है सबसे इंपॉर्टेंट, इंसुलिन. और इंसुलिन ये शब्द तो आजकल बहुत फेमस हो गया है बिकॉज इंडिया हैज बिकम लाइक वन ऑफ द मोस्ट हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ डायबिटिक पेशेंट्स इन द वर्ल्ड. अगर कहीं है तो वो इंडिया में है. सबसे ज्यादा कंपटीशन दे रहे हैं हम लोग डेवलपिंग कंट्री है और डायबिटीज मेलाइटिस मेजरली और डेवलप्ड कंट्री का डिजीज. बट हम इतना हर चीज में हम आगे हैं. अभी परसों हमने चंद्रयान 3 लॉन्च किया, वहां भी हम आगे हैं और यहाँ हम डिजीजेस में भी आगे हैं. ये जो सारे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स है, ओबेसिटी, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, मेटाबॉलिक सिंड्रोम, ये सारी चीजें डेवलप्ड कंट्रीज, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स, ये वहां होती है. यूएस, यूके, वहां देखते हैं हम जहाँ लोग लाइफ में बहुत ही चिल है, इनको कोई कुछ कष्ट नहीं है, बस काउच पटेटो बन के बैठे रहना है, उनको होती है यूजुअली ये डिजीजेस. पर ये हम भी होने लग गए, तो हम तो हर जगह कंपटीशन दे रहे हैं अब बेस्ट को, है ना. तो ये जो डायबिटीज होता है उसमें हमारे पैंक्रियाज इन्वॉल्व होते हैं, है ना. डायबिटीज इज बिकॉज ऑफ द इन्वॉल्वमेंट ऑफ पैंक्रियाज. There is the adrenal gland. There are the gonads, which are comprised of testes and ovaries. Testes होते हैं फीमेल्स में, सॉरी टेस्टिस होते हैं मेल्स में. को कंफ्यूज डायग्राम यहाँ पे टेस्टिस. ओके, नेवर माइंड. सो ये जो आपको दिख रहा है ना, ये ओवरीज है एंड बिकॉज दिस इज अ फीमेल तो यहाँ पे हमने टेस्टिस नहीं बनाया है, बट यहाँ साइड में बनाया हुआ है. दीज आर द टेस्ट. ओके, सो ये मेल्स में दिखते हैं और ओवरीज फीमेल्स में दिखते हैं. ये क्या है? हमारे जर्म सेल प्रोड्यूसिंग. हमारे जो रिप्रोडक्शन के लिए जो सेल्स जरूरी होते हैं ना, दे आर प्रोड्यूस्ड इन द मेल्स बाय द टेस्टिस एंड इन द फीमेल्स बाय द ओवरीज. तो और भी है एक्चुअली एंडोक्राइन ग्लैंड्स, सारे यहाँ पे नहीं दिए हुए हैं, बट वी विल डिस्कस देम व्हेन वी लर्न द एंडोक्राइन सिस्टम. व्हाट आर द फंक्शंस? डायरेक्ट्स लॉन्ग टर्म चेंजेस इन द एक्टिविटीज ऑफ अदर ऑर्गन्स, adjust metabolic activity and energy used by the body. अब एड्रिनल ग्लैंड अगर आप देखोगे, आपने सुना होगा एड्रिनलिन रश. एड्रिनलिन रश हो गया मुझे, तो मैं उस रोलर कोस्टर पे बैठा था, मुझे तो एड्रिनलिन रश हो गया. What is that? Adrenaline is your stress hormone. It is released when the body is under stress, when
you need to activate the fight or flight response. सुना है ये कहीं पे, है ना? तो ये जो है it adjusts the metabolic activity. Fight or flight situation मतलब क्या कि अभी either लड़ना है या भागना है. तो ये करने के लिए we need to channel our energy more to which systems, to our musculoskeletal system. कि भागना अगर है या लड़ना अगर है तो we need more energy where in our muscles, in our bones. तो ऐसे टाइम पे ये एड्रिनल ग्लैंड क्या करता है, एड्रिनलिन रिलीज करता है और ये जो एनर्जी होता है ना इसको चैनलाइज करता है टू द सिस्टम्स दैट आर रिक्वायरिंग एनर्जी एट दैट पॉइंट. Controls many structural and functional changes during development. Of course, ovaries और testes जो होते हैं, they are responsible for secondary sexual characteristics. जैसे लड़कियों में breast development, pubic hair development, ये सारी चीजें estrogen और progesterone जो कि हमारे testes और ovaries secrete करते हैं उसकी वजह से होती है. Testes से testosterone आता है जिसकी वजह से males में axial hair होता है, growth spurt जो हम देखते हैं puberty में, वो सारी जो चीजें हैं developmental changes जो हम देखते हैं, it is because of the एंडोक्राइन ग्लैंड्स. ओके, ये हमारा मस्कुलर सिस्टम. हमने वहां पे स्केलेटल सिस्टम देखा, ये मस्कुलर है, बट पढ़ते वक्त वी स्टडी द मस्कुलर स्केलेटल सिस्टम टुगेदर बिकॉज वन इज यूज्ड विदाउट द अदर. सिर्फ मसल का हम कुछ नहीं कर सकते. अगर आपको फ्रैक्चर हो गया है तो आपका मसल भले इंटैक्ट हो बट आप उसे यूज नहीं कर सकते. इन द सेम वे सिर्फ बोन का कुछ नहीं कर सकते कि बोन को आप मसल के बिना हिला ही नहीं सकते. सो दे आर बोथ इंटरडिपेंडेंट, मसल एंड बोन. सो वी विल बी स्टडीइंग देम टुगेदर. Organs, muscular system में क्या है, skeletal muscles and associated tendons. So here the tendons come. Okay, आपका जो tendon word है वो यहाँ पे आ गया जो मैंने आपको बताया था. Then provides movement, provides protection and support for other tissues. अभी ये जो आप देख रहे हो, ये जो आपकी abdominal cavity है, ये जो मसल है हम इसको बोलते हैं rectus abdominis. ये जो मसल है तो ये बहुत फर्म मसल होता है. आप देखते होंगे हीरोज के या फिर जो बॉडी बिल्डर्स हैं उनमें आपके 6 पैक एब्स और ये 8 पैक एब्स, ये सब वही है. ये क्या है? तो ऐसा नहीं है कि उसने बना लिए और उसके पास है मेरे पास नहीं है. हम सबके पास है क्योंकि मसल तो सबके पास है. हमारे छुप गए हैं, हमारे फैमिली पैक के अंदर हमारे 6 पैक्स छुप गए हैं, है ना, क्योंकि उसके ऊपर एक बहुत अच्छी सी लेयर आ गई है, प्रोटेक्टिव इंसुलेटरी लेयर. किसकी आ गई है? फैट की, है ना. तो ऐसा नहीं है कि हमारे पास 6 पैक एब्स नहीं है, हमारे पास भी है बट वो हमने छुपा के रखे हैं. कभी अगर टाइम मिला तो हम उन्हें निकालेंगे, है ना, वैसा है ये. और मसल्स क्या करते हैं? जनरेट हीट दैट मेंटेन्स द बॉडी टेम्परेचर. शिवरिंग, शिवर हम जब करते हैं तो क्या होता है? शिवर हम कैसे करते हैं? द मसल्स आर कॉन्ट्रैक्टिंग, रिलैक्सिंग ऑल्टरनेटली व्हिच इज कॉजिंग द शिवरिंग. सो दैट इज हाउ इट जनरेट्स हीट. जब हम बाहर दौड़ के आते हैं, एक्सरसाइज करके आते हैं या कुछ खेल के आते हैं और फिर डू सम हाउस होल्ड वर्क, तो वी स्टार्ट फीलिंग हॉट. गर्मी लगने लगती है अचानक से, पंखा बढ़ाओ, एसी चलाओ. तो क्यों? बिकॉज द मसल्स दे जनरेट हीट व्हेन वी यूज देम. कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, हार्ट, ब्लड वेसल्स. सबके दिल के करीब है ये दिल. नहीं, सबसे मतलब अगर कुछ भी हार्ट का प्रॉब्लम हो गया तो बहुत टेंशन आती है, जो कि होनी भी चाहिए बिकॉज हार्ट इज. अगर कभी हमें एमबीबीएस के फर्स्ट ईयर में ये क्वेश्चन हमारे सर ने पूछा था कि कौन सा ऑर्गन है जो सबसे इंपॉर्टेंट है पूरे बॉडी में, तो हम सब मतलब कोई बोल रहा था ब्रेन है, कोई बोल रहा था हार्ट है, कोई बोल रहा था लंग्स है, कोई बोला लिवर है. बट पता नहीं, हमें सर ने भी कहा और मुझे भी लगा बाद में कि ऐसे हम किसी एक ऑर्गन को चूज नहीं कर सकते बिकॉज वो एक ऑर्गन ही अगर काम करता रह गया और बाकी ऑर्गन्स ने कुछ भी नहीं किया तो उस एक ऑर्गन के एफर्ट्स भी यूजलेस है. नहीं, सिर्फ अगर हार्ट हमारा बीट कर रहा है लेकिन अगर हमारी क्या बोलते हैं उसको, हमारे मसल्स इंटैक्ट नहीं है, हमारे बोन्स इंटैक्ट नहीं, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम अगर प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रहा है तो सिर्फ हार्ट बीट का क्या फायदा. हम अगर डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा वर्क नहीं कर रहा है, हम खाना नहीं पाएंगे, खा नहीं पाएंगे, हम तो वैसे ही मर जाएंगे. अगर खा पा रहे हैं पर हार्ट नहीं फंक्शन कर रहा है तो ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगा डाइजेस्टिव सिस्टम को, हम फिर से मर जाएंगे. तो I don't think that we can make a choice between which is the most important organ because every organ is equally important. हर चीज को या हर ऑर्गन को अपना एक ड्यूटी असाइन किया गया है जो वो करता है without thinking कि am I superior to this organ or am I inferior to this organ. And now I think I will stop telling you that this is where your life lesson comes because I think you have become smart enough, like after giving 2 or 3 examples, I think you have realized like
how and where I am telling you that you should learn from your body. This is another place where you should learn from your body, and I think you already knew it before I told you that you should learn this from your body कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, मैं ज्यादा बड़ा हूँ वो ज्यादा बड़ा है, मैं तो सबसे सुपीरियर हूँ, मेरे बिना इसका कुछ नहीं हो सकता। ऐसा कुछ नहीं होता है, किसी का भी किसी के बिना कुछ नहीं रुकता, और सब एक दूसरे पे डिपेंड भी है। बोथ ऑफ देम आर ट्रू, बोथ ऑफ देम आर ट्रू एट द सेम टाइम। तो इसलिए हमें कभी ऐसे भी नहीं लगना चाहिए कि मेरे बिना तो इसका कुछ हो ही नहीं सकता, और ऐसे भी नहीं लगना चाहिए कि अरे ये तो क्या है, इसका तो कुछ इंपॉर्टेंस ही नहीं है। हर चीज का अपना इंपॉर्टेंस है, एंड वी शुड गिव दैट ड्यू इंपॉर्टेंस टू दैट पर्टिकुलर थिंग, वो कितना ही ट्रिवियल क्यों ना हो। स्किन, अभी स्किन तो मतलब हमें तो आज के पहले पता भी नहीं था आई थिंक कि स्किन एक ऑर्गन होता है, बट अगर स्किन नहीं होती तो हम क्या करते, हम जिंदा ही नहीं रह पाते अगर स्किन नहीं होती तो। ये जो इक्विलिब्रियम हम मेंटेन कर रहे हैं, हमें जो इतने सारे बाहर पोल्यूटेंट्स पॉइजन्स घूम रहे हैं इस पूरे हवा में, इस एनवायरमेंट में, हमें कौन प्रोटेक्ट कर रहा है उससे? सबसे पहला पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एंड पॉइंट ऑफ डिफेंस हमारे बॉडी का क्या है? स्किन है। अगर स्किन ही नहीं होगी तो हम क्या करेंगे? हमें लगता है कि हार्ट इंपॉर्टेंट है, ब्रेन इंपॉर्टेंट है, सारे बिग शॉट्स है हमारे बॉडी के पास, स्किन वो ब्रेन तक पहुंचने से पहले स्किन ही उसे रोक देती है, नहीं? तो इसलिए हर चीज का अपना अपना इंपॉर्टेंस है। तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के क्या फंक्शंस है? डिस्ट्रीब्यूट्स ब्लड सेल्स, वाटर, डिसॉल्व्ड मटेरियल्स, न्यूट्रिएंट्स, वेस्ट प्रोडक्ट्स, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, सब कुछ ये हमारे हाईवेज और हमारा ट्रांसपोर्ट सिस्टम है ना। डिस्ट्रीब्यूट्स हीट एंड असिस्ट इन कंट्रोल ऑफ बॉडी टेम्परेचर। ये कैसे करता है? आपने कभी देखा होगा बहुत गोरे जो लोग होते हैं, मुझ में तो नहीं दिखता ये, बट मेरी मम्मी में बहुत दिखता है क्योंकि वो बहुत गोरी है। तो वो जब धूप में जाके आती है ना, या फिर वो जब ऐसे कुछ काम करती है बहुत ज्यादा ना, तो उसका पूरा फेस लाल हो जाता है, बिकम्स रेड। व्हाई इज दैट? क्योंकि हमारी बॉडी ना वहां ज्यादा ब्लड भेजती है ताकि हीट डिस्ट्रीब्यूट हो जाए बॉडी में। ज्यादा ब्लड जाएगा तो ज्यादा स्वेटिंग होगा, ज्यादा स्वेटिंग होगा तो ज्यादा कूलिंग डाउन होगा, राइट? और ये जो हीट प्रोड्यूस हो रही है बॉडी में, इसे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। एक ही पार्ट ऑफ द बॉडी ज्यादा हीट अप हो गया तो इट कैन बी हार्मफुल फॉर द बॉडी। दैट इज हाउ इट असिस्ट इन द कंट्रोल ऑफ बॉडी टेम्परेचर। लिम्फेटिक सिस्टम, ये तो सिस्टम हमें भी नहीं पता थी, पता है 12th स्टैंडर्ड तक हमें लगता था कि ये क्या है, ये तो ब्लड, ये तो कार्डियोवास्कुलर ही है, इसको अलग से नाम क्यों दिया है? पर ये जो हमारी डिफेंस सिस्टम होती है ना, इसको हम बोलते हैं लिम्फेटिक सिस्टम। सारे ऑर्गन्स तो आप आई थिंक पहली ही बार सुन रहे होंगे, क्योंकि हमें भी ये ऑर्गन्स हम सबसे, अगर हमें कोई टफ सिस्टम लगती थी तो लिम्फेटिक सिस्टम, क्योंकि कभी सुना ही नहीं उसके बारे में। बाकी सब तो हार्ट, ब्रेन, लंग्स से तो बचपन से सुनते हैं, बट लिम्फेटिक सिस्टम तो कोई बोलता ही नहीं है। पर अगर लिम्फेटिक सिस्टम नहीं हुई ना, तो आप बाहर का कोई भी इन्फेक्शन यू कैच कर लोगे, और आपकी बॉडी के पास 1% भी डिफेंस नहीं होगा उसके अगेंस्ट, और आप इन्फेक्शन से मर जाओगे। तो ये भी सिस्टम इंपॉर्टेंट है। जो स्प्लीन है, थाइमस है, लिम्फेटिक वेसल्स, लिम्फ नोड्स, टॉन्सिल्स। क्या है टॉन्सिल्स? मुझे टॉन्सिल्स हो गया। जो स्वेलिंग हो जाती है कब होती है? थ्रोट इन्फेक्शन होता है तब होती है ना। क्यों होती है स्वेलिंग? क्यों होती है? क्या हो गया? बैक्टीरिया रह रहा है उसके अंदर? नहीं। जो आपके जो टॉन्सिल्स है, लिम्फ नोड्स है, दीस आर द हब ऑफ प्रोड्यूसिंग द डिफेंस मैकेनिज्म सेल्स, जिसे हम WBC बोलते हैं। ये जो सारे है ना, यहाँ पे ना बहुत सारे WBC स्टोर्ड होते हैं। तो जब आपको इन्फेक्शन होता है, जब बॉडी को जरूरत होती है कि अभी इनको ज्यादा प्रोड्यूस करना है और इनको ब्लड में भेजना है ताकि वो फाइट कर सके अगेंस्ट द इन्फेक्शन दैट इज देयर इन द ब्लड स्ट्रीम, तब ये सारे लिम्फ नोड्स, टॉन्सिल्स, ये सब एक्टिवेट हो जाते हैं, और ये सब ज्यादा काम करते हैं ना, इसलिए स्वेलअप हो जाते हैं। इसलिए हमें जो थ्रोट इन्फेक्शन के बाद यहाँ पे गले में दुख रहा है, स्वेलिंग हो गई है, तो वो जब टॉन्सिल सूझते हैं ना, तो उस वजह से सूझते हैं कि आपको इन्फेक्शन हो गया है, और उसके अगेंस्ट आपकी बॉडी जो लिम्फेटिक सिस्टम आपका जो है, दैट इज प्रोड्यूसिंग द WBCs टू फाइट अगेंस्ट इट। दैट इज व्हाट इज कॉजिंग द स्वेलिंग। सो इसका फंक्शन क्या है? डिफेंस अगेंस्ट इन्फेक्शन एंड डिजीज, एंड इट रिटर्न्स टिश्यू फ्लूइड्स टू द ब्लड स्ट्रीम। अभी ये आपको अभी समझ नहीं आएगा, वील learn it when we see the system as a whole, but basically ये आपका defense mechanism का system, lymphatic system. Urinary system, kidney, ureter, urinary bladder, urethra. This is the kidney, this is the ureter, urinary bladder and the urethra. ठीक है? किडनी तो मतलब अब सबको ही पता है, excretes waste products from the blood, filter करती है blood से जो टॉक्सिन्स है, जो भी अनवांटेड प्रोडक्ट्स है, जो ड्रग्स है, उस सबको फिल्टर करती है।
कंट्रोल्स वाटर बैलेंस बाय रेगुलेटिंग वॉल्यूम ऑफ यूरिन प्रोड्यूस्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारी किडनी, हमें लगता होगा कि हमारा ब्लड प्रेशर तो हार्ट मेंटेन करता है, बट दैट इज नॉट ट्रू। हमारा ब्लड प्रेशर मेंटेन करने में हमारे हार्ट का तो हाथ है ही ऑब्वियसली, बट अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इज प्लेड बाय द किडनी। कि ब्लड प्रेशर मतलब क्या है? ब्लड इज व्हाट? ब्लड इज, हम तो सुनते हैं आवर बॉडी इज 70% वाटर, वैसे ही ब्लड का भी मोर देन हाफ ऑफ द ब्लड इज व्हाट? इट इज फ्लूइड, इट इज वाटर। तो ये वाटर बॉडी में कितना आएगा, कितना जाएगा, ये कौन देखता है? किडनी देखती है। तो जब आपका बीपी कम हो जाता है ना, तो किडनी क्या करती है, उसका जो पानी है वो यूरिनेशन कम कर देता है। इट स्टार्ट्स रिटेनिंग मोर वाटर, राइट? और जब आपका प्रेशर ज्यादा होता है ना, तो इट स्टार्ट्स एक्सक्रीटिंग मोर वाटर एंड इट सिक्रीट्स सर्टेन एंजाइम्स एंड हार्मोन्स आल्सो व्हिच मेंटेन द ब्लड प्रेशर। वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, वो हम शायद विल लर्न इट और मे बी विल नॉट, आई हैव टू सी व्हाट इज देयर इन योर करिकुलम। बट बेसिकली किडनी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। इसलिए हम जो सुनते हैं किडनी ट्रांसप्लांट, इट्स वेरी कॉमन बिकॉज इट इज इंपॉर्टेंट। इट स्टोर्स द यूरिन प्रायर टू वॉलंटरी एलिमिनेशन। ये कौन? ये यूरिनरी ब्लैडर करता है, स्टोरेज ऑफ यूरिन। प्रोडक्शन ऑफ यूरिन करता है किडनी, स्टोरेज ऑफ यूरिन करता है यूरिनरी ब्लैडर। रेगुलेट्स ब्लड आयन कॉन्सेंट्रेशंस एंड पीएच। ये भी इंपॉर्टेंट है बहुत। इलेक्ट्रोलाइट, सिर्फ पानी नहीं एक्सक्रीट करता ना ब्लड हमारा, उसके साथ जो सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ये सारे जो है, कैल्शियम, ये हमारी बॉडी में जो अगर कुछ भी इम्बैलेंस हो गया ना, बॉडी में कुछ ज्यादा हो गया तो उसे बॉडी से निकालने का काम किडनी का है। बॉडी में कुछ कम है तो उसे बॉडी से बाहर ना जाने देना, ये भी काम किडनी का है बेसिकली, ठीक है? फिर हमारा रेस्पिरेटरी, सबसे फ्रेंडली सिस्टम है ये हमारा, इजी टू अंडरस्टैंड बिकॉज कम ऑर्गन होते हैं उसमें। नाक से चालू होता है नेजल कैविटी, साइनसेस, साइनोसाइटिस हो गया मुझे, वो क्या होता है वो हम देखेंगे। लैरिंग्स, कॉल योर वॉइस बॉक्स, यहाँ से आप आवाज प्रोड्यूस करते हो। आप आवाज प्रोड्यूस कर रहे हो इज बेसिकली आप आवाज प्रोड्यूस करना है, सांस बाहर छोड़ना। यू कैन नेवर टॉक व्हाइल यू आर ब्रीदिंग इन। ट्राई टॉकिंग व्हाइल यू आर ब्रीदिंग इन, यू कैन डू दैट। ट्राई इट फॉर मी। सांस लो और साइमल्टेनियसली बात करने की कोशिश करो, यू कैन डू इट बिकॉज टॉकिंग और प्रोड्यूसिंग वॉइस इज एन एक्सपायरेटरी प्रोसेस। क्या होता है ना, जब लैरिंग्स में जो हमारे जो वोकल कॉर्ड्स होते हैं ना, वोकल कॉर्ड्स वो ऐसे होते हैं दो, तो जब हवा ऐसे नीचे से ऊपर आती है ना लंग से, तब वो वाइब्रेट होते हैं, और ये वाइब्रेशन की वजह से हमारा फोनेशन, जिसे हम बोलते हैं आवाज, वो आती है। तो आवाज हमारी मुंह से आती है, बट वो बनाता हमारा लैरिंग्स है। और आवाज तो ये आवाज तो कोई भी कर लेगा, एनिमल्स भी आवाज, उनके पास भी लैरिंग्स है, वो भी आवाज कर सकते हैं, पर हम बात कर सकते हैं। सो आई थिंक टॉकिंग की जगह हम अगर कहेंगे कि फोनेशन, दैट विल बी अ बेटर वर्ड। टॉकिंग या वॉइस मॉड्यूलेशन इज द वर्क ऑफ योर टंग, योर नोज, योर लिप्स। वॉइस मॉड्यूलेशन करने का काम जो है, बात करना और आवाज करना, इसमें बहुत फर्क होता है। बात करने का जो काम है ना, वो लिप्स, टंग और आपका क्या था, नोज। कुछ लोग कैसे नाक में बात करते हैं, तो वो नोज मॉड्यूलेट हो गया ना आवाज। कुछ लोग एकदम ऐसे ऐसे वो ऐसे एकदम, क्या बोलते हैं, लड़के स्पेशली टीनेज लड़के कैसे बात करते हैं, उनको दिखाना है कि मैं भी बड़ा हो गया हूँ, तो दे ट्राई टू ब्रिंग दैट स्मॉल्डर इन देयर वॉइस। तो वो सब मॉड्यूलेट करना आवाज को, वो इन सब का काम है। आवाज बेसिकली आना, ये हमारे लंग का और हमारे लैरिंग्स का काम है, ठीक है? ट्रकिया, इसे हम ट्रकिया कहते हैं। हमारी जो एयर है जो हम इंस्पायर करते हैं, वो यहाँ से अंदर जाती है ट्रकिया में, दो ब्रोंका में डिवाइड होती है, राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकस, लंग्स में जाती है। और लंग्स का फिर छोटे छोटे जो सबसे माइन्यूट एरिया होता है जहाँ पे एक्चुअली गैस एक्सचेंज का प्रोसेस होता है, वो है हमारा एल्वियोलाई, ठीक है? तो एल्वियोलाई में आपका ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है, मतलब ब्लड और एल्वियोलाई, ब्लड वेसल और एल्वियोलाई। ये एल्वियोलाई है, ये ब्लड वेसल है। सपोज दिस इज योर एल्वियोलाई एंड दिस इज योर ब्लड वेसल, ये आपके सेल्स है। तो आपका पूरा जो भी है ना ऑक्सीजन, वो इस पूरे पाथ से आके बेसिकली इस एल्वियोलाई में चला गया। यहाँ से वो O2 यहाँ अंदर जाता है और ये सेल में से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आता है। दिस हैपेंस एट द लेवल ऑफ एल्वियोलाई,
ओके, फंक्शंस ये तो हमने देख ही लिया. Delivers air to alveoli, sites in lung where gas exchange occurs, provides oxygen to bloodstream, removes carbon dioxide from bloodstream, produces sounds for communication. अरे वाह, ये तो हमें पहले से पता था. हमने तो देखा भी नहीं फंक्शन के पास, हमने तो सिर्फ ऑर्गन्स देख के ही सारे फंक्शंस पता लगा लिए. ठीक है, फिर आता है डाइजेस्टिव सिस्टम. कितने सिस्टम्स है बॉडी में, खत्म ही नहीं हो रहे हैं ना. डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या है, सबसे पहले टीथ, फिर टंग, फेरिंग्स. वो लैरिंग्स था, ये फेरिंग्स है. हाउ टू रिमेम्बर फेरिंग्स, एफ, फेरिंग्स एफ, फूड. एक्चुअली पी से है बट उसका प्रोनाउंस हम फ करते हैं ना, तो फेरिंग्स फूड, फूड डाइजेस्टिव. तो डाइजेस्टिव सिस्टम में आता है फेरिंग्स और रेस्पिरेटरी सिस्टम में आता है लैरिंग्स. ओके, वैसे आप याद रखें, बिकॉज बहुत कंफ्यूजन होता है. हमें भी अभी तक होता था कि फेरिंग्स कौन सी सिस्टम का पार्ट है और लैरिंग्स सिस्टम का पार्ट है. ठीक है, फिर इसोफेगस. ये जो इसोफेगस होता है ये ट्रकिया के पीछे होता है, मतलब इसके आगे. अब अगर आप टच करोगे यहाँ पे तो आपको ये जो ट्रकियल रिंग्स, ये जो रिंग्स है ना, ये कार्टिलेजिनस रिंग्स, these are all your ट्रकियल रिंग्स. इसके पीछे इसोफेगस है. तो क्यों ट्रकिया आगे क्यों है, इसोफेगस पीछे क्यों है, इसोफेगस आगे क्यों नहीं है? बिकॉज इसोफेगस इज अ कोलैप्सिबल ट्यूब. मतलब क्या, जब उसमें खाना डालते हो तभी वो डिस्टेंड होती है और तभी वहां से खाना अंदर जाता है. वो खुली नहीं रहती पूरा टाइम. क्यों? क्योंकि पूरा टाइम खुली रहेगी तो आप कुछ भी निकल जाओगे. कुछ भी आती जाती चीज अगर गलती से मुंह में चली गई तो अंदर चली जाएगी सीधा. खुला ही रहेगा तो. क्योंकि हवा देखो ना, अभी हम बात कर रहे हैं, वी डोंट हैव टू कॉन्शियसली थिंक और कॉन्शियसली डू द एक्ट ऑफ ब्रीदिंग. इट इज हैपनिंग इनवॉलंटरीली बिकॉज इट इज ऑलवेज. ईटिंग वैसा नहीं है. आप ऐसे ही खा नहीं सकते बिकॉज आपके जो इसोफेगस का टोन है ना वो मेंटेन होता है, कोलैप्स होता है. वो आपको खाना है तो आपको स्पिंक्टर ओपन करना पड़ेगा तो ही वो अंदर जाएगा. तो अगर ये कोलैप्सिबल है मतलब ये डेलिकेट है, क्योंकि इसको कोई प्रोटेक्शन नहीं है. इट्स नॉट हार्ड, विच इज वाई इट इज बिहाइंड द ट्रकिया, बिकॉज ट्रकिया इज हार्ड. अगर आपको कोई इम्पैक्ट लगा यहाँ पे तो देयर इज अ लेस चांस ऑफ ट्रकिया गेटिंग डैमेज, क्योंकि इट इज प्रोटेक्टेड बाय द कार्टिलेजिनस रिंग्स. वही अगर वैसा इम्पैक्ट आपको अंदर निगलने के बाद आपने अगर कुछ शार्प ऑब्जेक्ट निगल लिया तो इसोफेगस तो परफोरेट हो जाएगा, ब्लीडिंग हो जाएगा आपको इजीली. क्यों? क्योंकि वो डेलिकेट है, इट इज सॉफ्ट. इसोफेगस से हम आते हैं स्टमक में, है ना. दिस इज द स्टमक. स्टमक के बाद द स्मॉल इंटेस्टाइन, ये जो अंदर का है ये. फिर ये जो बाहर का है दिस इज द लार्ज इंटेस्टाइन. और ये लिवर हमारा, गॉल ब्लैडर एंड पैंक्रियास. देखो यहाँ डाइजेस्टिव सिस्टम में पैंक्रियास आ गए. हमने और कहाँ पढ़े थे ये पैंक्रियास? वी हैड लर्न्ड देम इन द एंडोक्राइन सिस्टम. हमने सुना था कि वो एंडोक्राइन सिस्टम में भी है और डाइजेस्टिव सिस्टम में भी है. मैंने आपको बताया दो टाइप. वो पैंक्रियास जो है इट इज हेटेरोक्राइन ग्लैंड. इट प्रोड्यूसेस digestive enzymes also as well as hormone also. Which hormones? Insulin, glucagon, which you will learn in the endocrine system. Processes and digests food, absorbs and conserves water, absorbs nutrients, सारे टाइप के nutrients, ions, water, breakdown products of dietary sugar, protein, fat, and stores energy reserves. Storage कहाँ हो रहा है? ये तो सब digestion है. storage liver में होता है. आपका जो ग्लूकोज है ना वो लिवर में स्टोर होता है. जब आपको जरूरत पड़ती है तो आपका जो ग्लूकागॉन, इट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन. इट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन and this glycogen gets converted to glucose when you need it. When you need energy, the stored glucose in the form of glycogen gets converted to glucose. We'll learn this in the digestive system. Male reproductive system: testes, epididymis, ductus deferens, seminal vesicles, prostate gland, penis, scrotum. I don't think आपको ये इतने डिटेल में होने वाला है, but just देखने के लिए we can just remember, okay? The testes, then there is the epididymis on top of it, then the ductus deferens or the vas deferens, this, the seminal vesicles, prostate gland, and the penis. Okay, I'll rub this off because it's very shabby. You can have a look at the original diagram. Produces male sex cells and hormones. Hormone कौन सा? टेस्टोस्टेरोन. ठीक है. और मेल सेक्स सेल स्पर्म. फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन: ओवरीज, यूट्राइन ट्यूब और फैलोपियन ट्यूब.
uterus, vagina, labia, clitoris, mammary gland. Mammary gland is also a part of sexual female reproductive. It's a secondary sexual organ. Secondary क्यों बोलते हैं हम? Because ये जो बाकी सारी चीजें हैं ये तो हमें जब हम पैदा होते हैं इसके साथ ही पैदा होते हैं, बट हमारे जो मेमोरी ग्लैंड्स है स्पेशली इन फीमेल्स, दे डोंट लुक द वे लाइक द वे दे आर नाउ व्हेन यू आर बोर्न. दे आर मेल और फीमेल में डिफरेंशिएट नहीं कर पाते ना हम. छोटे बच्चे में, इन्फेंट में कैसे डिफरेंशिएट करते हैं? वी लुक एट द जेनिटल्स, वी कांट से कि ये लड़का है या लड़की है. उनके बाकी स्ट्रक्चर को देख के वी कांट डिफरेंशिएट, सिर्फ जेनिटल्स को देख के डिफरेंशिएट कर सकते हैं ना. तो ये जो ये सेकेंडरी है, ये कब आता है? व्हेन योर ओवरी स्टार्ट सिक्रीटिंग ईस्ट्रोजन ना एट प्यूबर्टी, तभी व्हेन यू स्टार्ट मेंस्ट्रुएटिंग तभी ये सारे चेंजेस दिखते हैं. मैमरी ग्लैंड्स या फिर प्यूबिक हेयर या फिर वो जो आर ग्लास अपीयरेंस ऑफ द वेस्ट. अगर आपने एक 3rd 4th स्टैंडर्ड की बच्ची को देखा होगा तो वो ऐसी होती है उस पे, बिकॉज दे आर चिल्ड्रन. में लड़का लड़की में इतना कुछ फर्क नहीं होता स्ट्रेट ऐसे. But when they start menstruating, when they hit puberty, तब you attain that hourglass shape like this, है ना? That is also तो ये जो हिप पे जो फैट आता है, जो वेस्ट पे फैट आता है, एंड ये जो इधर का जो एरिया थिन हो जाता है ना, दिस इज बिकॉज ऑफ द हार्मोनल इफेक्ट. क्या फंक्शंस है? प्रोडक्शन ऑफ फीमेल सेक्स सेल्स, ओवोसाइट एंड हार्मोन्स व्हिच इज ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन. Supports developing embryo from conception to delivery. यूट्रस का सबसे इंपॉर्टेंट, ये यूट्रस पता है कितना सा होता है? दिस इज 10 सेंटीमीटर, इतना सा होता है ये बॉडी में. और प्रेगनेंसी में पता है कितना हो जाता है? हाउ मच इट कैन एक्सपांड? इट कैन गो टू 100 सेंटीमीटर्स. 100 सेंटीमीटर्स तक ये जा सकता है, एक्सटेंड हो सकता है, डिस्टेंड हो सकता है. सो वेरी वेरी फ्लेक्सिबल ऑर्गन. छोटा सा जब जाइगोट होता है ना, when it is a single celled zygote, when the baby is a single celled zygote, वहां से लेके fully grown 37 weeks of gestation वाला बच्चा वो यूट्रस के अंदर रह सकता है. तो इतना यूट्रस डिस्टेंसेबल है. ये सब हम एकदम डिटेल में देखेंगे इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. प्रोवाइड्स मिल्क, दैट इज व्हाई द मैमरी ग्लैंड्स आर मोर डेवलप्ड इन फीमेल्स एज कंपेयर्ड टू मेल्स, बिकॉज हमारा वो नीड है. It is obviously a cosmetic organ, but more than that, it is for the nutrition of the baby. Okay, so I think this was an overview of all the topics. ये जो आगे है, this is the central system. This we'll learn the next time. But I think you have gotten an overview of the different systems of the body, how they are formed, and more than that, मतलब ये तो हमें सीखना ही है, but ये काम आने वाला है लाइफ में. But how to relate this with yoga? So कैसे होता है ना, when you do a particular asan before learning about your body and when you do it after learning about your body, when you do pranayam ना, अभी आप सब उस प्राणायाम करते हो, अनुलोम विलोम we will do, kapalbhati you don't know how it is affecting your body and why it is affecting the way it is. You don't know it because you don't know your body. But when you will learn about the respiratory system, and I'll teach you that what exactly is the mechanism of gas exchange, you will be conscious about your body. आप ध्यान दोगे. When I will teach you about the musculoskeletal system, you will pay attention to how this particular muscle is acting, whether it is contracting, whether it is relaxing. You will pay attention to it. When you will meditate, you will pay attention to what is the capacity of your brain, how you can expand it, right? That is why anatomy and physiology is important. So you can integrate it with yoga and have a wholesome experience. You can have a, you can say, integrated approach to yoga with the help of your body. हमारे पास जो है, हमारे पास क्या है? हमारी बॉडी है, सब बाकी तो टेम्पररी है. हमारे पास जो है उसे हम कैसे यूज कर सकते हैं to have a better approach towards what we are learning, right? And obviously the things that I have taught, the stuff that you can learn from your body, these are some things that I have learned and which I think that can be learned from my body. But if there is something, if there is a different angle, if there is something that you have learned from your body, or right now while I was teaching you have this certain epiphany कि अरे ये भी तो मैं लाइफ में अप्लाई कर सकता हूँ या कर सकती हूँ. If you have that, that is like that will be marking that this lecture was a success. If you can learn at least one thing from your body on your own, that will be success for me for this lecture.
So I think that will be it for the introduction of anatomy and physiology and its integration with yoga. Are there any doubts with respect to today's lecture? I don't. Yeah, ma'am. Yeah. Ma'am, so we will be kind of learning all these with respect to the asanas and with respect to the application from the therapy perspective, right? Yes. Okay. So say, for example, if we take a particular disease, say if it is, because I believe we have the concept of female health also. in Yes, detail. yes. I will be touching upon it. In fact, I'll be going in great depth. Ma'am has told me that this year female health is very important for your exam, as well as because she has told me that the awareness of female health has increased a lot. So I will definitely be going in depth of female health and the different diseases that affect, like PCOS, PCOD. These are very common. Menstrual problems, menstrual irregularities, acne, infertility. All of these things I will be touching upon when I teach the female reproductive system. मॅडम ही पीपीटी मिळेल का? हा? आपली पीपीटी मिळेल का? हो चालेल, मी पाठवेन ना. ऍक्च्युली मॅम तुम्हाला नोट्स पण देणार आहेत आणि तिने मॅमने मला सांगितलं की देर आर इंग्लिश, हिंदी अँड मराठी स्टुडंट्स इन दिस बॅच. सो I think she will be compiling notes for in all the 3 languages and you will be receiving it. But until then, I will share the PPT, no problem. Anything else? Ma'am, beautifully explained, and the presentation was fabulous. I mean, it was so clear for us to, relate and understand. Thank you so much. Thank you. If there was any language barrier, just please let me know, because I tried my best to talk in both Hindi and English. But if someone wants it in Marathi as well, I can integrate that also. But I'm assuming that everyone knows Hindi. So. Okay, so No, I ma'am, think the integration with the life examples, especially the qualities that we need to develop, and that was really good. I mean, Yeah. first time we looked at things from that perspective. Thank you so much. yeah, that is what we are trying so hard to know about everything that is outside us. We want to know कि उसने क्या किया. We want to know कि इसने क्या खाया, उसने क्या पहना था. What is he doing? How much is he earning? What is his child doing? उसके बच्चे को कितने marks आए? We are interested in all of these things. We want to learn everything that is outside. But if for once we try to learn what is inside, we will get so many life lessons. Like these are some that I think I have realized, but there can be so many, because this is my point of view. But your point of view can be something else, and you can explain it or you can realize it in a different way than me. And that will be really great. So I think that's what we should do. Yes, ma'am, that was a unique thing. Very nicely explained about the life lessons we should learn from the body. It was a very unique perspective. Thank you so much. Yeah. I think is Amita ma'am there in the lecture, because then she will stop the recording and I think then we can end the lecture. Can someone? I will do it, ma'am. Okay, you're I'm just gonna do doing it. it right now. Yeah.